welcome you. I welcome you all to Indian Institute of Soil and Water Conservation for the celebration of World Water Day. Why we choose this particular day for the celebration of World Water Day is that on this day we try to review what has been our endeavor in terms of conserving and utilizing the water efficiently. What are the different components of water? As a society, as a human being, what care we must take to preserve this precious resource. There are various themes on which we have been celebrating this Water Day. The current theme for today's celebration is groundwater, making the invisible visible. Among the various forms of water which is available in the earth, part of it is in the form of glaciers. Majority of the part is in the ocean. But all that form of water, we are not able to use it for our purpose, whether it is for consumption, for agriculture, or for any industrial use. We are using only a fraction of the total water available globally for, that is the fresh water resource, which is received either in terms of rainfall or snowfall, subsequently melting and flowing in the river. Because of increased population, rapid development and industrialization, we have started exploiting these resources more than what it can replenish in course of time. Why we have to look back to see the availability of water and use the water over a period of time is, even in these days, the water resource rich region, which we are having sufficient rainfall receiving, they are feeling water stress in a particular period of time. So, as a human being, as a part of society, it is the responsibility of all that whatever the water we are using, we use it judiciously, we use the minimum quantity and get the maximum output out of the resource which we are using. We should preserve whatever the resources which we have, and we should not pollute it so that we are able to protect this resource for the posterity. In today's program, we have two eminent speakers. One is waterman or Jal Purush, Dr. Rajan Singh ji, who is part of a renowned NGO, Tarun Bharat Sangh. He has agreed to join us from Dubai because he is there in the Dubai for World Water Expo. We had contact till yesterday, but somehow we are not able to connect him this morning. We have sent him the link. As soon as he joins us, we will try to connect to that. And at 11 o'clock, we have another presentation that also will be virtually from Dr. Man Singh. He is presently heading the Water Technology Center, IARI, New Delhi. He will addressing the gathering. And then we'll have a visit to our museum where we will showcase what all activities this particular institute is mandated is doing. And after lunch, we have a field visit where we will show how practically things are done
and how best we are able to utilize the available resource. So that is all program we have chalked out for today. And you being the next generation to whom we should pass on the baton for the management of this precious resource, we have invited the students to sensitize them about the sensitivity of the issue, and they should take care of this precious resource for times to come. So I'll just check it up. Meanwhile, I'll request our present occupied of director, Dr. Ojasvi. Our director is on another program at Graphic Era University. He's chief guest there, so he is connected to us virtually. And Dr. Ojasvi will be presiding over this function in today's celebration. So I'll just request our Dr. Ojasvi Saab to kindly address the gathering, and meanwhile we'll see whether we are able to connect to Dr. Rajan Singh. Otherwise, we have his message which he wanted to convey in the form of a short video film, which will show it to you. Thank you. जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की। शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की।
This is this was just an introduction of the eminent speakers which wanted to have from his address from Dubai. Somehow he is at far off place and we are not able to connect to him. I request our director, Dr. Ojasvi, to brief about this particular occasion, and will show about the activities which Dr. Rajan Singh ji was carrying out in his program as a Tarun Bharat Sangh NGO that will show you subsequently. And I'll request now our director to kindly speak. थैंक यू शिमाली जी। सभी को नमस्कार। और आज के इस विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर वीक, जो हर साल मनाया जाता है, इसमें मैं सभी अपने स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं गेस्ट, उनका स्वागत करता हूं अपने संस्थान की तरफ से। ये दिवस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस के प्रति ज़्यादा सजग हो गए हैं और हम अपने आप नहीं हुए हैं, फोर्स किया गया है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, डिमांड्स ज़्यादा हैं और ऐसा लगता है कि नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि वाटर बहुत कम है। ये एक डिबेट चला आ रहा है कि वास्तव में कम है या हमारे अपनी लापरवाही की वजह से हमें मिलता नहीं है। तो इसीलिए जो आज का टॉपिक है, आपने देखा होगा, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, मतलब कि ग्राउंड वाटर है लेकिन हम उसे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसे सही शब्दों में कहें तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसकी कई वजह हैं और इसकी कई डायमेंशन हैं। और जब हम पानी जैसे, जल जैसे नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारी प्रकृति भी समाहित है और हम लोग भी समाहित हैं। जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो जगह भी इस विषय के अंतर्गत आती है। तो इसी वजह से जो प्रोग्राम आज का बनाया गया है शिमाली जी और उनकी टीम ने, इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अगर आप लोग ध्यान दें तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर फोकस किया गया है। 1980 के दशक में जब ये बिल्कुल हम लोग यही समझते थे कि पानी को अगर उपलब्ध कराना है, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो, इन्वायरमेंट की तो तब बात ही नहीं होती थी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी हमें दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, दिखाई कहाँ देता है? रिवर्स में दिखाई देता है, आपके लेक्स में दिखाई देता है। तो लेक्स तो फिक्स्ड हैं, लेकिन रिवर्स में हर साल आपको पानी दिखाई देता है, क्योंकि हमारा मानसून सीजन जून से सितंबर तक है और उसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी सबको दिखाई देता है। तो उसको यूज किया जाए, उसके लिए डैम, कैनाल्स, यही सब टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस था। और उसमें कुछ गलत नहीं है, होना भी चाहिए। उसकी मैं अगर आप देखेंगे कि कितना रिवर्स से वाटर फ्लो हो रहा है
और रेनफॉल एक बेसिक फ्रेश वाटर का इनपुट होता है किसी भी जगह पे, कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना रिवर्स में फ्लो हो रहा है। तो रेनफॉल क्योंकि सीमित है 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो ये लाजमी है कि हम जो पानी हमें दिखाई दे रहा है रिवर्स में फ्लो होता है उसको मैनेज करें, उसे स्टोर करें, यूज करें। तो यही एक फोकस था 1980 के दशक में, और यही सब परियोजनाएं चला करती थी। बड़े बड़े डैम, कैनाल्स उसी वक्त परसीव हुए। उस वक्त जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उन्होंने कैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से रेन वाटर को हार्वेस्ट करके और पानी की ज़रूरत को हजारों गांव में किस तरह से उसको पूरा किया जाए, उस चीज पे फोकस किया। तरुण भारत संघ बनाया 1985 के करीब, और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि उस वक्त मैं जोधपुर में था, और हम लोगों ने भी एक वाटरशेड मैनेजमेंट की तकनीकी से, जब लोग ये सोचते थे कि एरिड जोन में पानी नहीं हो सकता, बारिश होती है और नहीं होती है, उसका कोई श्योरिटी नहीं था, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी। स्टोरेज तो बिल्कुल ही नेचुरल अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो प्राचीन तरीके से होता था वो हुआ करता था, और उसके अलावा लोग सोचते थे कि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। तो वही लोगों की उम्मीद थी कि इसी से कुछ हो सकता है, और जहां पर स्कार्सिटी होती है वहीं पर जो भी आप काम करें उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। वैसे तो अगर जल की समस्या की बात की जाए तो ये एरिड जोन तक सीमित नहीं है, ये हर जगह है, यहाँ पर भी है, जबकि ये ज्यादा रेनफॉल का क्षेत्र है, यहाँ भी है। ये डिपेंड करता है कि आपके हैबिटेशंस कहाँ हैं। बड़े शहर हैं, एक ही जगह में अगर 80 लाख लोग रह रहे हैं तो नेचुरली उस क्षेत्र में जितना पानी उपलब्ध है वो उनको उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसको इरिगेट करना पड़ेगा। तो 80% तक फ्रेश वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में के यूज के लिए चाहिए, तभी हमारी फूड सिक्योरिटी पूरी होगी। हेल्थ सेक्टर, मतलब कितने आयाम हैं इस जल के, इस वाटर रिसोर्सेस के, आप लोगों को सभी ये ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ सेक्टर में अगर पॉल्यूटेड वाटर नहीं है तभी सोसाइटीज सरवाइव कर सकती हैं, अदरवाइज तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। ज़्यादातर बीमारियां पानी से ही फैलती हैं, वो एक कैरियर है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे कंसर्न का विषय है, जो कि शोध का भी विषय है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल लेवल पे मैनेजमेंट का भी विषय है कि किस तरह से हम इस रिसोर्स को लोगों को उपलब्ध कराएं जिससे कि पूरा सोसाइटी सस्टेन रहे। और क्योंकि क्यों डॉक्टर राजेंद्र सिंह के जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे भी वैलिड हैं, क्योंकि हम लोगों को तो पता है लेकिन आप लोग यंग लोग हैं तो इसलिए आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो एक सही तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिमाली जी और उनकी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने
जो भी रिसोर्स पर्सन हमारे देश में आजकल हैं, जो इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने पूरा अपना जीवन इस विषय पर लगा दिया, वो आज आपके समक्ष अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो 1980 के दशक की बात हो रही थी, जब लोग ये सोचते थे कि बड़े बड़े डैम और कैनाल बनाने से ही ये काम हो सकता है। और उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने एक बीड़ा उठाया, तरुण भारत संघ के माध्यम से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के करीब 8000 से ज़्यादा स्ट्रक्चर उन्होंने बनवाए अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही, और हजारों गांवों को पानी उपलब्ध कराया। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके बाद बहुत सारे इस तरह के सफल काम हुए, लेकिन इसमें ये जरूरी है कि पूरा समाज इस काम को करने के लिए सहयोग दे। इसमें पैसा लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, समय भी लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है। बाद में जैसे जैसे विकास होता गया, जल की आवश्यकता बढ़ती गई, लोग उसको निकालते रहे, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स है। अगर नदी से नहीं कर सकते तो जमीन से निकालना शुरू कर दिया। जमीन से निकालने की वजह से जो नेचुरली रेन वाटर जमीन के अंदर जाता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस के रूप में, जितना जा रहा था उससे ज़्यादा निकालने लगे। तो नेचुरली फिर ओवर द इयर्स जब ये करते रहेंगे तो वहाँ भी समस्या आने लगी। और फिर जो हमारी पेरिनियल रिवर्स हैं, नदर्न रीजन, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर रिवर्स पेरिनियल हैं, और उसकी वजह है सिर्फ ग्लेशियर ही उसकी वजह नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि जो यहाँ की लैंडस्केप है, टोपोग्राफी, जो यहाँ के कैचमेंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं नेचुरल वे में, और उसको धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं, जिससे कि समर फ्लो बना रहता है। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ग्लेशियर से है उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो ज़रूरी है, बेस फ्लो बना रहे। तो कैचमेंट्स धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं। आपको जो बारिश के सीजन के बाद भी नदियों में पानी बना रहता है। एक तो हम उस ग्राउंड वाटर को ज़्यादा निकालने लगे, दूसरे हमने कैचमेंट्स में कुछ ऐसा कर दिया कि जो प्राकृतिक चक्र होता है, जलीय संतुलन, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, बारिश का पानी जमीन के नीचे जाएगा ग्राउंड वाटर रिजर्व में, उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो अब ये जैसे हमारा अर्बन एरिया है देहरादून का, अब यहाँ 2 नदियाँ हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों ही सूख चुकी हैं। सिर्फ रेनी सीजन में थोड़ा बहुत उसमें पानी आता, अदरवाइज पूरे साल सूखी रहती। पहले ऐसा नहीं था, उसमें फ्लो बना रहता था। उसकी वजह यही है कि यहाँ इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया कि वो पूरी इस कैचमेंट की हाइड्रोलॉजिक साइकिल डिस्टर्ब हो गई। तो एक ये भी कंसर्न, ये भी विकास होगा तो कुछ ना कुछ चेंज, परिवर्तन जरूर आएगा, चेंज आएगा। तो ये एक चेंज था जिसे हम लोगों को मैनेज करना चाहिए था, इस चीज को देख के कि हमारे इस काम करने से ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो खैर अब समय है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग सजग नहीं हैं। पूरी तरह से लोग इस विषय पर शोध कर रहे हैं, और सरकारी तंत्र बन रहे हैं। और ये आज का प्रोग्राम भी इसीलिए है कि सबको इस बात के लिए अवेयर कराया जाए कि हमें आगे चल के क्या करना है। नहीं, वो जुड़ गए क्या?
अच्छा अच्छा। तो बात यही थी कि आप लोगों को इस विषय पे सेंसिटाइज किया जाए, क्योंकि आप लोग टॉर्च बियरर हैं, और जो तथ्य हैं उनको साथ लेके चला जाए। आज के टाइम में 1980 के दशक से लेके आज तक के जो टाइम 30 साल का समय गुजर गया, उसमें काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो कि जबकि उस वक्त नहीं थी। तो आज के टाइम में डेटा है हमारे पास, क्या प्रोसेसेस होती हैं, उनके मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, पॉल्यूशन को कैसे रोकना है उसकी टेक्नोलॉजी है, किस तरह से बजाय कि जो प्राकृतिक साइकिल है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, उसमें किस तरह से अपने इंटरवेंशन से ये जो फ्रेश वाटर रिजर्व, फ्रेश वाटर जो रेनफॉल के रूप में आता है, उसको किस तरह से अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए यूज करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, वो टेक्नोलॉजीज भी हैं। और ज़रूरत सिर्फ इसी बात की है कि हम इस चीज़ को समझें कि वाटर रिसोर्स जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, इसके दो आयाम होते हैं, एक तो सप्लाई साइड है और एक डिमांड साइड। सप्लाई साइड में जो भी रीजन होगा, चाहे वो एरिड रीजन हो, चाहे हिली रीजन हो, चाहे सेमी एरिड रीजन हो, वहाँ जितना फ्रेश वाटर रेनफॉल के रूप में आता है उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और वो जो रिसोर्स आता है उसको हम किस तरह से अपने बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए उसको स्टोर करें, उसको यूज करें, वो एक आयाम है। उसके लिए भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको इस तरह से कैजुअली ना लें। आई मीन ये नहीं कि भाई ये फ्री रिसोर्स है, अवेलेबल है। अभी तक तो यही होता है कि फ्रेश वाटर तो अवेलेबल है भाई, अगर आपके टैप में नहीं आ रहा है तो जाके बाहर से बोतल में खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी चीज़ें मिल रही हैं। डिमांड साइड मतलब एक तरह की मार्केट इकोनॉमी भी इस रिसोर्स पर डिपेंड करती है। तो जब तक मिल रहा है ठीक है, आगे नहीं मिलेगा तो फिर हम बोलेंगे कि भाई अरे ये क्या हो गया। सोसाइटीज़ को सस्टेनेबल वे में अगर और हेल्दी वे में अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स चाहिए, वो है वाटर। बाकी तो आप धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे। बिना पानी के तो आप शायद 3 दिन नहीं रह सकते, बिना खाने के आप 2 महीने भी रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी स्टूडेंट्स हैं और ये भविष्य आप ही लोगों पर डिपेंड करता है। जितनी सूचना हम लोग डेवलप कर सकते थे वो सब आप लोगों के सामने है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, जो भीड़ में से अकेले उठ खड़े, हम लोग भी उस वक्त काम कर रहे थे और हमने भी एक अच्छा मॉडल बनाया था एरिड जोन में कैसे वाटर रिसोर्सेस को मैनेज किया जाता है। लेकिन उन्होंने उसमें अपना पूरा जीवन लगा दिया और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जितनी भी
सरकारें थीं या जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस जो उस वक्त वाटर रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए अभी भी हैं और बने थे, उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक नए तरीके से भी ये काम संभव है, और उसको सक्सेसफुली करके दिखाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोग इस विषय को चुनेंगे और इस पे आगे क्या किया जा सकता है, जो समाज की समस्याएं उनको सॉल्व करने के लिए आप लोग इस बारे में सोचेंगे। समस्याएं पॉल्यूशन की हैं, समस्याएं सप्लाई की हैं, और अगर कोई ये कहे कि सफिशिएंट मात्रा में वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उस बात को मैं नहीं मानूंगा। अगर आप हम लोगों का लिटरेचर देखें तो सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है, सिर्फ उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे कि लोग जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं। अब एक गांव में तो एक आदमी अकेला रहता है, उस तक कैसे पहुंचाएंगे? लेकिन वो संभव है, ऐसा नहीं कि उस तक पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, संभव है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस जिम्मेदारी को आगे संभालेंगे। So once again, welcome to all. Thank you very much. We are not able to connect to Dr. Rajan Singh ji, who is in Dubai presently. But we'll try to give his message to you through a short film in which we'll listen what he has spoke about this precious resource and what is the approach which he followed in getting this success. I request Amit Chauhan ji to kindly play this. Thank you. पहले बादल तो आते थे मेरे गांव में, पर रूठ कर चले जाते थे कहाँ मैं नहीं जानता था। जब मैंने बादलों को परखना शुरू किया तो बादलों को पकड़ने लगा। फिर बादल बरसने लगे, जहाँ वो बरसते थे वहाँ पानी दौड़कर चलता था। उसको रेंगना सिखाया, जहाँ वो रेंगने लगा वहाँ धरती का खुला पेट देखकर उसमें बैठाया। फिर उसको सूरज की नजर न लगी, वो उड़ा नहीं। जब पानी की जरूरत हुई तो उस पानी को निकाल के जीवन चलाया। तुम जानते हो भारत का 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर खाली हो गया है। भारत का जो असली बैंक है वो केवल पैसे वाला बैंक नहीं होता है, वो पानी वाला बैंक होता है। यदि भारत के धरती के पेट में पानी नहीं रहेगा तो ना तुम खेती कर सकोगे, ना व्यापार कर सकोगे, ना उद्योग कर सकोगे। पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने बाथरूम में जाके कितना पानी उड़ेलते हो अपने शरीर पर? फुहारा चलता रहता है, पानी बर्बाद होता रहता है, क्योंकि तुम्हें फ्री में मिल रहा है 4 रुपए में 1000 लीटर। पानी की कीमत रुपए में नहीं है, पानी की कीमत जीवन में है। एक दिन एक बूढ़े किसान ने आके मुझसे कहा, हमारे यहाँ हर साल बादल पानी लेके आता है और उसको सूरज चोरी कर लेता है, सूरज उड़ा लेता है, तो हमारे लिए पानी बचता ही नहीं। तू सूरज की चोरी रोक दे। तो मैंने कहा, काका मैंने सूरज की चोरी को नहीं पढ़ी। मुझे इलाके के 20 कुएं ले जाके नीचे दिखाए और उन कुओं में जिस तरह के फ्रैक्चर थे, उन फ्रैक्चर के ऊपर पानी रोकने से पानी धरती के पेट में जाएगा और फिर वहां से सूरज चोरी नहीं कर सकेगा। ये मुझे उसने सिखाया। पूरे गांव ने मिलकर अरवारी नदी कैचमेंट एरिया में अलग अलग रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स बनाए, जैसे कि एनीकट, चेक डैम और जोहार। 1996 में अरवारी नदी फिर से बहने लगी और अब ये पूरे साल बहती है। हर एक बूंद का महत्व है, हर एक बूंद में प्राण है।
भारत को यदि पानीदार रहना है तो वर्षा का जल सहेजना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज कह सकता हूं कि पिछले 36 सालों में 12 सूखी मरी हुई नदियों को लोगों की मेहनत से, बिना सरकारी पैसा लिए, लोगों के पसीने से पुनर्जीवित कर सका। जब मैं जवान था तो इस देश की किसी भी नदी में से पानी उठा के पी सकता था। आज इस देश में एक नदी ऐसी नहीं बची जिसका पानी उठा के पी सकते हैं। इसलिए नदियों पर संकट है। इस संकट से लड़ने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। पानी का काम किसी एक का नहीं होता, अकेले का नहीं होता, सबका साझा होता है। इसलिए सबको लगना पड़ेगा। हमें यही ऐसे ही काम करने आते हैं, हमें और काम तो आता नहीं। इसलिए हमने ये तय कर लिया है कि हम हमारी जिंदगी का जो अब और बाकी समय है, हमें यही करना है। पानी, प्रकृति, पर्यावरण और ये पूरा परिवेश अच्छा बने, उसके लिए लगे। आपने अभी हमारे मुख्य अतिथि का संदेश सुना। कितने आसान शब्दों में उन्होंने जल की महत्ता को समझाया और कैसे हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। जहां भी हम क्षेत्र में निवास करते हैं उसमें किस तरीके से उसके संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं, उसको उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया। वह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन इस सोसाइटल कॉज के लिए लगाया और वो विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का कार्य करते रहे हैं। संदेश देने का मात्र यही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में इस प्राकृतिक स्रोत को जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको संरक्षित कर रखें। और जैसे हमने अपने पूर्वजों से इस प्राकृतिक स्रोत को पाया है, उसी तरह हम अपने आने वाली जनरेशन को भी दें। नहीं तो हम उनके जो भी कष्ट होंगे उसके उत्तरदायी होंगे। इसी क्रम में एक लघु हमारे समक्ष पाववाला सोड़ा ग्राम के प्रधान भी उपस्थित हैं। हमारा एक संस्थान का कार्यक्रम हुआ था जिसके अंतर्गत हमने जो अभी आपने चर्चा सुनी उसको धरातल पर क्रियान्वयन किया था, क्योंकि संदेश में यही कहा गया कि पानी जो भी प्राकृतिक स्रोत है, पानी, हवा, वनस्पति, इस पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है और सभी लोगों का कर्तव्य है कि उनका संरक्षण करें। तो जिस भी गतिविधि को हम करना चाहते हैं संरक्षण की, उसमें सभी लोगों की सहभागिता हो। इसी क्रम में ये कार्यक्रम किया गया था और वहाँ के जो निवासी थे, गांव निवासी, उन लोगों ने उस विकास, उस संरक्षण कार्य को
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, व्यक्तिगत रूप से श्रमदान दिया, अपने जो भी सीमित संसाधन थे उनका उसमें उपयोग किया, और आज वह गांव एक खुशहाल गांव और आदर्श गांव के रूप में उत्तराखंड में जाना जाता है। उसी कार्य की वजह से विजय पंवार जी उस ग्राम के प्रधान चुने गए, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये आज कल विभिन्न कार्यक्रमों में और विभिन्न मंचों पर अपनी इस सफलता का गुणगान बखान करते हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी इनसे प्रेरणा ले सकें और जहां भी अपना छोटे समुदाय हैं उनका विकास कर सकें। हम भोजन के पश्चात इन्हीं के गांव के भ्रमण पर जाएंगे, जहां हम आपको जो कुछ तकनीकियां इस संस्थान ने खेत के स्तर पर की हैं उसका आपको देखने का मौका मिलेगा। कुछ और लघु संदेश हमारे पास हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे, और कुछ समय पश्चात चाय का आयोजन है। उसके पश्चात लगभग 11 बजे शेड्यूल कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर मान सिंह दिल्ली से हमसे जुड़ेंगे और वो इस अवसर पर अपना संदेश देंगे। तो मैं चौहान जी से निवेदन करता हूं कि कुछ लघु जो संदेश है वो दें प्लीज। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल के मध्य रायपुर थानो मार्ग पर स्थित है हरितिमा से भरा एक सीधी पट्टी नुमा सुंदर गांव पाववाला सोडा। लगभग 350 बीघा क्षेत्रफल में फैला 55 परिवारों वाला यह गांव एक विकसित गांव है, जहां का निवासी एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। लगभग 325 की जनसंख्या वाले इस क्षेत्र में वोटरों की संख्या 250 के लगभग है। गांव में अधिकतर लोग किसानी पर आश्रित रहने वाले हैं। गांव के लोग पारंपरिक कृषि कार्य के अतिरिक्त फल फूल उत्पादन का कार्य भी करते हैं। आमों के सघन वृक्ष इस बात का उदाहरण है तथा सुंदर पॉली हाउस भी गांव के मध्य देखा जा सकता है। कुक्कुट पालन जैसे कार्य भी इस गांव के रहने वालों के जीवन यापन का एक सहारा है। खेती के अलावा यहाँ पर पोल्ट्री फार्म और पोलो हाउस और आम के बगीचे की अच्छी फसल होती है, जिससे कि काफ़ी आमदनी हो जाती है हमारे। पाववाला सोडा ग्राम में आज सभी सुविधाएं पर्याप्त हैं, किंतु पूर्व में इस गांव की स्थिति आज जैसी नहीं थी। इस गांव में पेयजल एवं सिंचाई योग्य जल का बहुत अभाव था। हमारे पूर्वज पहले लोगों को, आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाया करते थे, जिसे इसे पाववाला सोडा कहते थे। अब फिर धीरे धीरे इसे पाववाला सोडा के नाम से जाने लगा। आज पाववाला सोडा ग्राम के निवासी यहाँ पेयजल की परेशानियों को स्मरण करते हैं तो वह कठिनाइयों का समय उन्हें याद आ जाता है। पानी की समस्या सबसे अधिक महिलाओं को झेलनी पड़ती है। वह ऊंचे नीचे पहाड़ी मार्गों पर सर पर घड़े रखकर पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकती हैं। पहले हमारे गांव में बहुत समस्या थी पानी की, और हमें नदी पार करके जाना पड़ता था, नदी सोत में पानी लेने, और अकेले हम जा नहीं सकते, 2-4 महिलाएं इकट्ठी होकर तब जाना पड़ता था। अब काफ़ी सुविधा है हमें पानी की, पानी पीने की भी और सिंचाई की भी। पानी की तलाश में ग्रामीणों का अधिकतर समय नष्ट हो जाया करता था तथा वह अपने परिवार एवं ग्रामीण विकास के विषय में सोच भी नहीं पाते थे। गांव के 3 नवयुवकों ने मिलकर गांव में इतिहास रच दिया। गांव के 3 नवयुवकों के भागीरथी प्रयास के कारण गांव में पेयजल व सिंचाई योग्य पानी की अविरल धारा इस गांव की ओर बहने लगी। यहाँ पर जो है पानी की भगीरथी प्रयास से जो यहाँ पर पानी आया, जिसमें जो है विजय सिंह पंवार जी, पदम सिंह जी और जगबीर सिंह के सौजन्य से यहाँ पर पानी आया। और यहाँ पर जो जमीन थी हमारी असिंचित, अभी सिंचित हो चुकी है। पीने का पानी पहले बहुत दूर से लोग लेके आते थे, और अभी जो है ये सिंचाई का पानी यहाँ पर आया है, और ये 3 लड़के लेके आए हैं, जिससे कि यहाँ पर सिंचाई का विकास हो सका है और फसल अच्छी होने लगी है।
तीन नवयुवक विजय पवार, जगवीर किशाली, पदम सिंह ने यह संकल्प लिया कि इस गांव में जल के अभाव को वह जड़ से समाप्त करके ही शांति से बैठेंगे। उनके जुझारू प्रयास एवं कार्य के प्रति उत्साह एवं उमंग के आगे बड़ी बड़ी कठिनाइयों ने भी सिर झुका लिया। इन तीन नवयुवकों ने सरकारी क्षेत्रों में प्रयास किया, किंतु इन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। किंतु इन्होंने थक कर हार नहीं मानी तथा अपने प्रयासों से जहां एक और गांव में जल की धारा लाने हेतु पैसे इकट्ठे किए, वहीं पूरे ग्राम में अपनी योजना को सफल बनाने हेतु एक जागरूकता अभियान भी छेड़ दिया। धीरे धीरे पूरा गांव इन नवयुवकों के पीछे हो लिया। फिर क्या था, इनके कार्य में आने वाली मुश्किलें हार गई और इनका सफलता अभियान सिर उठाकर आगे चल पड़ा। पेयजल के लिए भी हमें जो है हमारे गांव में काफ़ी दिक्कतें होती थी। आज जो है हमने पेयजल की समस्याओं को भी जो है सरकार के पर दबाव बनाकर जो है डबल पेयजल की सिंचाई की व्यवस्था हमने कर दी है। गांव के नवयुवक, स्त्री, पुरुष सब एक साथ कार्य में जुट गए। प्राकृतिक स्रोतों से गांव तक लोहे की नालियां बिछाई जाने लगी। प्राकृतिक स्रोत से निकलने वाले जल को लोहे के पाइप के माध्यम से एक टैंक में संग्रहित किया जाता है। फिर इस टैंक में संग्रहित जल को पानी की पाइपलाइन के माध्यम से गांव में पेयजल एवं सिंचाई योग्य जल की आपूर्ति हेतु वितरित कर दिया जाता है। गांव में पेयजल एवं सिंचाई योग्य भूमि की आपूर्ति हेतु एक ट्यूबवेल की व्यवस्था है, जो प्राकृतिक स्रोत के अतिरिक्त जल आपूर्ति के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल एवं सिंचाई योग्य पानी प्रदान करता है। एक कुशल ऑपरेटर रात दिन कार्य करके इस ट्यूबवेल के पानी को ग्रामीणों तक पहुंचाता है। आज ग्राम का प्रत्येक ग्रामीण इन तीनों नवयुवकों की सराहना करना नहीं भूलता। ग्राम प्रधान विजय पवार की अगुवाई में प्रत्येक ग्रामीण एक मत होकर उनके सहयोग हेतु तैयार रहता है। पहले यहाँ सिंचाई और पीने योग्य पानी नहीं था। अब जो है विजय पवार जी, जगवीर और जी पदम सिंह जी, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके जो है ये सिंचाई का पानी, पीने का पानी गांव में लाए। पहले जो पीने का पानी था उसमें बड़ी तंगी थी। हमें यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर से हमें हमारी माँ बहनों को सिर में घड़ा रख के या बाल्टी में लाना पड़ता था। लेकिन जब से टैंक बना है और इससे जब से पाइपलाइन गांव में आई है, कनेक्शन मिले, हमें बड़ी आराम मिल गया है। घर घर कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। सब हमारे डंगरों को पानी पीने के लिए, हमें पीने के लिए 12 घंटे पानी है, 24 घंटे पानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत साफ पानी है और टाइम टू टाइम इसमें ब्लीचिंग पाउडर पड़ता रहता है। ग्राम पाववाला सोडा में पहले शौचालय के अभाव था। यहाँ के ग्रामीण इन पहाड़ी क्षेत्रों में शौच हेतु काफी दूर दूर तक जाया करते थे। आज ग्राम के हर घर में निजी शौचालय है तथा ग्रामीणों को शौच हेतु कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। पहले हमारे घर शौचालय नहीं थी तो महिलाओं को दिक्कत होती थी बहुत। झाड़ियों में जंगल दूर जाना पड़ता था, जंगलों में डर है जंगली जानवरों का। जैसे जैसे धीरे धीरे ग्राम का विकास होने लगा तो हमारे घर सब गांव में शौचालय बन गए, पूरे गांव में। और अब महिलाओं को दिक्कत नहीं होती है। अब जब बारिश में जैसे पहले दिक्कत होती थी, अब उस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बन गया है तो महिलाएं अब आराम से अपने बेझिझक होकर शौचालय यूज़ कर सकती हैं। गांव के ठोस अपशिष्ट को किसी बैग में भरकर एक स्थान पर गड्ढा बनाकर उसमें डाल देते हैं। वहां से उसे किसी सुरक्षित स्थान पर भिजवाकर निस्तारित करवा दिया जाता है। तरल अपशिष्ट को एक गड्ढे या सोक पीट में एकत्र करके उसे निस्तारित कर दिया जाता है। हमारे गांव में ये समस्या है कि कूड़ा, पहले तो कूड़ा इधर उधर फेंक देते थे लोग, लेकिन अब हमने घर घर जाके ये सबको बताया कि कूड़ा एक जगह इकट्ठा करना, उसको बोरी में भर के कहीं दूर फेंक के आते हैं। गांव में घर घर में शौचालय निर्माण तथा पेयजल एवं सिंचाई व अन्य कार्यों हेतु गांव तक जल की अविरल धारा गांव को प्रदान करने के पश्चात अब वह ठोस एवं तरल अपशिष्ट निस्तारण हेतु समर्पित है, ताकि उनका क्षेत्र पूर्णतः हमेशा सुंदर एवं स्वच्छ बना रह सके। और शौचालय बनने से जो है हमारे यहाँ जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो बढ़िया हुई है। और शौचालय का काम निपटाने के बाद अब हम लोग ठोस एवं तरल कूड़ा निस्तारण के लिए हम लोगों ने अपनी योजना बनाई है। उस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने जो है कूड़े का डिवाइडेशन किया है। जो प्लास्टिक जो किसी योग्य नहीं होता है उसको हम लोग जो है इकट्ठा करके कहीं गड्ढे में उसको दबाने का एक हमने कार्यक्रम बनाया है। और जो तरल वाला जो कूड़ा है उसको हमने सोक पीट के माध्यम से उसको जो है ट्रीटमेंट करने का हमने पूरा प्रयास किया है, ताकि हमारे गांव में कोई भी जो है किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। कहते हैं जिस कार्य को निस्वार्थ भावना के साथ किया जाता है उसका फल हमेशा बहुत सुखदायी हुआ करता है। आज उनके पास सिंचाई एवं अन्य कार्यों हेतु पर्याप्त जल की सुविधा है, इसलिए अपने कृषि कार्य के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण सुखी है तथा पूरा ग्राम एक हरियाली युक्त हरी भरी पट्टी के रूप में दूर से ही दिख जाता है।
जहां सुख है, चैन है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। यानी पाववाला सोडा गांव का प्रत्येक ग्रामीण यहां की व्यवस्था से पूर्णतः संतुष्ट है। इस लघु संदेश के माध्यम से आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यदि कोई व्यक्ति और कोई समूह कुछ बीड़ा उठा ले तो अपने विकास के लिए खुद ही भागीरथ प्रयास करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकता है। हम कुछ समय पश्चात विजय पंवार जी के अनुभव भी सुनेंगे। उससे पूर्व हम कुछ समय के लिए सूक्ष्म जलपान का ब्रेक करेंगे और मैं आशा करता हूं कि लगभग 10-12 मिनट के समय में आप अपना जलपान कर वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे, क्योंकि 11 बजे हम डॉक्टर मान सिंह के लेक्चर से वर्चुअली जुड़ेंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर ओजस्वी जी को इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अभी कार्यक्रम लंच तक है, उसके पश्चात ही हम फील्ड के लिए प्रस्थान करेंगे। लंच के पश्चात सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई है, तो आपको भोजन संबंधित चिंता की आवश्यकता नहीं है और हम लोग यहाँ पे भोजन के पश्चात भ्रमण के लिए प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। Let us have break for 10 minutes and please assemble back so that we can have the lecture by Dr. Man Singh, who is joining us virtually from Delhi. Thank you.